کیا حال ہے؟ بیٹھ جائیے. عید قیامت المسیح منانے کے بعد کیسا حال ہے ہمارا؟ بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کلیسیا سستی کا، تھکاوٹ کا شکار ہو چکی ہے. جبکہ جب مسیح خداوند زندہ ہوئے تو کلیسیا کے اندر، شاگردوں کے اندر دلیری آ گئی. انہوں نے کوئی ان کے اوپر جو پابندیاں تھی، کسی پابندی کا خیال نہیں کیا، اور ان کے اندر زور، طاقت، قوت سے وہ بھر گئے، کیونکہ ان کا مسیح خداوند زندہ ہو گیا تھا. اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ صرف سن رائز سروس پر یا صرف ایسٹر کی مین عبادت پر ہی ہم یہاں پر موجود نہ ہوں، بلکہ ایوری سنڈے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک دن کے لیے زندہ نہیں ہوئے. اس نے کیا کہا مکاشفہ کی کتاب میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور اب عبدالعباد زندہ رہوں گا. Praise God. سلام میرے جائے. اب اگر وہ زندہ ہوا ہے تو پھر کبھی مرنے کا نہیں. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے. تو اس لیے مسیحیوں کو، کرسچنز کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ وہ جس مسیح خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم بھی زندہ ہیں. اور اگر ہم مر بھی گئے تو وہ ہم کو بھی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا. آمین. تو آج صبح جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے دوسرا کرنتھیوں، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرائسٹ لیونگ اپیسلز، مسیح کا زندہ خط. اور پولس رسول نے دوسرے کرنتھیوں 3 باب میں نئے عہد کے خادم کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا، اور کلیسیا کو بھی. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اپنی بائبل نکال لیا. یہ حوالہ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. 3 باب پہلی آیت، دوسرا کرنتھیوں. کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ دوسری آیت، ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ کیا لکھا آپ کی بائبل میں؟ وہ تم ہو، ہم ہیں. وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی کیا کرتے ہیں؟ جانتے. اور آگے بھی ایک لفظ لکھا ہے، اور پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا. تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر خدا کے کلام سے، خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا. خدا کا کلام تمہیں سنایا اور تم وہ خط بن گئے ہو. سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے. اور آگے لکھے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت یعنی دل کی تختیوں پر. ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. لفظوں کے خادم نہیں. آج کل لفظوں کے خادم بڑے ہیں،
क्या क्या लोग लिख लेते हैं, रेवरेंड भी, डॉक्टर भी, बिशप भी, पास्टर भी, और क्या क्या लफ्जों के खादम बने हुए। कह रहे हम लफ्जों के खादम नहीं है, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहिए आमीन। खत बहुत सदियों पहले तो नहीं कह सकते, जब ये सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो लोग खतों के जरिए अपने प्यारों से राबते करते थे और वो खतों के अंदर ही उनकी खैरियत दरियाफ्त करते, खतों से ही उनका हाल पूछते। और वो खत जब आते तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो तो खुद पढ़ लेते, लेकिन जिनके पास पढ़ने वाला वो नहीं घर में होता था तो वो फिर ढूंढते फिरते थे कोई ऐसा शख्स मिले जो उन्हें वो उनका खत पढ़कर सुनाए। तो आज भी सरकारी तौर पर खत लिखे जाते, लेटर्स लिखे जाते, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अगर वो होते हैं तो उनको लेटर्स के जरिए, और अगर वहां पर जो जॉब करते, काम करते, अगर उन्होंने भी कोई काम लेना है तो उनको रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए। और आजकल हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ खत, किस किस को पता है, जजों को बड़े इंथराइटिक्स, हाँ शौकत साहब, बाकी को शायद नहीं पता, हाँ जी बाजी नसरीन को भी पता है, वो कैसे खत है, बड़े खतरनाक खत, जरासीम वाले खत, जिनको छूने से या उनको सूंघने से, हाथ लगाने से वो आप उनका जरासीम का शिकार हो सकते हैं, मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन कलाम के मुताबिक हम भी खत हैं, लेकिन हमें ऐसे खत नहीं बनना जो जरासीम से भरे हों, जो खतरनाक वायरस से भरे हों। तो पौलुस रसूल कलीसिया को मसीह का जिंदा खत कहता है कि तुम मसीह का वो खत हो जिसे लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। याद रखिए, हम जहां पर भी हैं, चाहे हम अपने घरों के अंदर हैं, चाहे हम अपनी जॉब पर हैं, बिजनेस पर हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कहीं पर भी हम हैं, आपको लोग पढ़ रहे हैं और हमारे कैरेक्टर से, हमारे किरदार से हमें पढ़ा जाता है, हमें जानते हैं लोग। और कलाम में हमने सीखा है कि हमारा जो खत दिलों पर लिखा हो, तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। याद रखिए, आप घर के अंदर हैं, आप औलाद हैं, आप माँ बाप हैं, आप बीवी हैं, आप शोहर हैं, आप बहू हैं, आप सास हैं, आप ससुर हैं, आप बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी भी रिश्ते के अंदर आप हैं, आप एक जिंदा खत की मानित हैं, जिसे घर के अंदर से लोग पढ़ रहे हैं, बाहर से लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम अपने मोहल्ले के अंदर भी हैं तो फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं। हमारी हरकतों से, हमारी हरकत और सकनात से जायजा लिया जाता है कि ए शख्स किस तरह दा है। और आज हम गौर करेंगे कि जो जिंदा खत है, लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, जिंदा खुदा के रूह से तुम लिखा हुआ खत हो। और जिंदा खुदा के रूह से लिखा हुआ खत भी जिंदा होना चाहिए, मुर्दा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जान होनी चाहिए, उसके अंदर मसीह जैसे काम होने चाहिए, रवैया होना चाहिए, मसीह जैसी बातें होनी चाहिए, मसीह जैसे काम होने चाहिए। उस खत के अंदर उसकी खूबियां होनी चाहिए। पौलुस रसूल कहते हैं कि उसने तुमको तरीकी के कामों से निकालकर अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है ताकि तुम उसकी खूबियां बयान करो, उसकी खूबियां जाहिर करने के लिए। इस खत का
मतलब है कि हम मसीह की खूबियां जाहिर करने वाले हो। जहां पर भी हम हो वहां पर हम खूबियां जाहिर करने वाले हों। तो हम चर्च में भी हैं तो मसीह का जिंदा खत है, अगर कलाम सुना रहे हैं तो मसीह का जिंदा खत है, अगर क्वायर में हैं तो मसीह का जिंदा खत है, अगर हम कहीं पर भी हैं खादम है तो मसीह का जिंदा खत है, अगर किसी रिश्ते के अंदर है तो मसीह का जिंदा खत है। बल्कि दुनिया के अंदर मसीहियों को चलती फिरती पांचवी अंजील बन जाना चाहिए, तो फिर यह खत होगा। अगर वो अब तक अंजील के अंदर कन्वर्ट नहीं है तो तुम मसीह का जिंदा खत नहीं हो, तुम्हारे अंदर से अंजील नहीं निकलती, खुशखबरी नहीं निकलती। अंजील का मानी क्या है? खुशखबरी। और आज लोग, हर कोई यही कहता है, को बुरी खबर सुनने के लिए तैयार होता है। आप किसी को कहे मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं आज, तो वो कहेगा जल्दी ना दसो। तो खुशखबरी सुनने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं, लोग तजस्सुस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बुरी खबर सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो अब तक हमें, जब से हमने मसीह को कबूल किया है, हमारे अंदर खुशखबरी होनी चाहिए और हमें मसीह की पांचवी अंजील, नए अहदनामे के अंदर हम जो अंजील है पांचवी, वो हम कलीसिया हैं, और वो खत की सूरत में। पौलुस रसूल ने कितने खत लिखे? नेक्स्ट लेवल की कलीसिया 14। अगर ब्रानी को खत भी पाले, बाजी खालदा अनपढ़ है मेरी वांगू, लेकिन ओ ने दस दिता है कितने खत लिए ने? 13 खत। वैसे अगर ब्रानियों को भी डाल दो तो कितने हो जाते हैं? 14। नेक्स्ट लेवल की कलीसिया को पता होना चाहिए। तो खत, वो खतों के जरिए ही उनसे ज्यादा बातचीत करता है। जहां पर कलीसिया काम करते वहां पर किसी को तैनात करते और फिर दोबारा से कहीं पर कुछ उसने खत जेल खाना के अंदर से लिखे, कहीं दूसरी कलीसिया में बैठ कर लिखे, और वो खत लिख रहा था। और फिर उसने खत लिखते लिखते कलीसिया को यह कह दिया कि तुम मसीह का जिंदा खत हो। तो आज हम भी अपने आप को चेक करें, क्या वाकई अगर कोई मुझे देखे तो मैं मसीह का जिंदा खत हूं? अगर मेरे इलाके में मुझे कोई देखे, मेरे मोहल्ले में मैं देखे, तो मैं वाकई मसीह का जिंदा खत हूं? अगर कोई मेरी जॉब पर मुझे देखे तो मैं वाकई मसीह का जिंदा खत हूं? मैं कहीं पर भी हूं, किसी रिश्ते के अंदर भी हूं, तो मैं वाकई मसीह का जिंदा खत हूं? क्या हमको देखकर पता चल सकता है कि हम कैसा खत है? कई लोगों को तो वेखदे ही पता लग जाता है ना क्या केड़ा खत ने। आज बहुत सारे खत आपको नजर आएंगे दुनिया के अंदर। कुप्पी में खत, ये भी खत ही है खत ही दोनों वेख के कह देने वो वाला खत। आगे है नशाई खत, लालची खत, फराडिये खत। ये खत सारे खतों के अंदर ही आ जाते हैं। इनको पढ़कर आप देख कर ही कह देते हैं अब इन देखो बचना पाई, इन को बच के रहना, यही होता है ना, इससे बच कर रहना। फराडिये खत, घमंडी खत, चरसी खत, शराबिये खत, जुआरिये खत, ते गुस्सा करने वाले खत भी ना। कई तो गुस्से का साह भी जाहिर हो जाते हैं ना, भावे वो कितने भी बैठे हो। गुस्सा खत, गाली गलोच करने वाले खत, रुसन वाले खत, एक मिनट च रोज गए ओ क्या है, रुसन वाले खत, नफरती खत, लड़ाई करने वाले खत, मां बाप की नाफरमानी करने वाले खत। क्या हमारा शुमार कहां पर है आज? हसद करने वाला खत, सड़ियल खत, किसी के कारोबार को देखकर, किसी की चीज को देखकर साड़ी जाना। हाय इन्हां नूं होर कोई काम नहीं लभा, एक ही चीज लभी सानू साड़न वास्ते, आपको जलाने के लिए नहीं है। और फिर खाऊ खत, फिर पैसा कढ़ाऊ खत। कई पैसे कढ़ाने का बड़ा तरीका है, पैसा कढ़ाऊ खत। क्या हमारा ते मक्खन लाओ खत, मक्खन लाने वाले, खुशामदी खत, अपना वखाऊ खत, शिकायती खत,
बुत परस्ती वाले खत, नाच रंग वाले खत, जादूगरी वाले खत, मुर्दा खत, अपने कामों के लिए दिन रात एक कर देने वाला खत। लेकिन मसीह के लिए कोई फिक्र नहीं है। कलाम कहता है सबको अपनी अपनी फिक्र है, ना कि यसु मसीह की। कईयां दा ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। तो अक्सर ही तो इसलिए हम कैसा खत हैं? बहानेबाजी वाला खत, बहाने में कईयों को बहाने में बड़े होंगे, बहाने लगाने वाला खत। और रोमियो के खत के अंदर लिखा है, एक हवाला निकालिए, 6 बाब, उसकी 11वीं आयत। रोमियो 11वां बाब 6 आयत, सॉरी 6 बाब 11वीं आयत। लिखा है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में कैसा समझो? जिंदा समझो। गुनाह के इतबार से मुर्दा, जिन्हें खत दिया दसियां ने ना गल्लां, इन्हां विचों मुर्दा हो जाओ, लेकिन मसीह के इतबार से अपने आप को जिंदा समझो। मसीह के कामों के लिए, मसीह की सिताइश के लिए, मसीह की प्रस्तिश के लिए, मसीह के जलाल के लिए, मसीह की खिदमत के लिए अपने आप को जिंदा करो। उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए दिन रात एक करो। उसके लिए आज सुबह, बल्कि कल निशा साहब से मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे मैसेज किसका है? मैं कि मैसेज तो मेरा है, लेकिन अभी तक तैयारी कोई नहीं है। तो मैं रात को सो भी ना सका, और मेरे बच्चे भी देख रहे हैं बाज पर यार क्यों नहीं सौन दिया। सुबह उठ के पूछा रात को, पापा जी आपको नींद क्यों नहीं आ रही? मैं क्या नींद इस वजह से नहीं आ रही, टेंशन थी, मैसेज क्या दूं। मैसेज कौन सा है? रात के तकरीबन 2:30-3 बजे फिर मेरी आंख, मैंने उठा, बाइबल पकड़ी और लेटे लेटे खुदा ने फिर ये मैसेज दिया जो आप तक आज पहुंचा रहे हैं। तो इस मैसेज के अंदर खुदा ने फिर आज ये बातें बताई कि हम जहां पर भी हैं मसीह का जिंदा खत है। और लिखा है कि इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं जिंदा खत हूं? क्या मैं खुदा के रूह से लिखा हुआ खत हूं? क्या मैं मसीह के खून से धुला हुआ खत हूं? क्या मैं खुदा के कलाम से पैदा किया गया हुआ खत हूं? रसूल पतरस रसूल कहता है कि तुम कलाम के तुखम से नए सिरे से पैदा हुए हो जो जिंदा है। क्या वाकई मैं जिंदा खत हूं? जिंदगी जिंदा करने वाला जो है, जो रूह है, वो लिखा है कि वो जिंदा करती है। लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है, रूह जिंदा करता है। और फिलिपियों के खत के अंदर पौलुस रसूल पहले बाब के अंदर उसकी 21वीं आयत में कहता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। मैं जिंदा हूं मसीह के लिए, मैं जिंदा हूं मसीह के काम के लिए, मैं जिंदा हूं मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए, मैं जिंदा हूं मसीह के कलाम पर अमल करने के लिए, मैं जिंदा हूं मसीह की मानद बनने के लिए। मैं इसलिए जिंदा नहीं हूं कि मैं अपनी मर्जी करूं, मैं अपने आप को खुश करूं, मैं अपने आप को नुमाया करूं, मैं अपना आप यहां पर दिखाऊं। मैं इसलिए जिंदा नहीं हूं ताकि मेरे वसीला से मसीह तुमको नजर आ जाए। इसलिए वो कहते हैं तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। मेरी मानद बनो। और थस्सलुनीकियों की पहली किताब 3 बाब 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम हो तो हम जिंदा हैं। मसीह में कायम रहने के लिए जिंदा रहिए कि मसीह खुदावंद हम तुझ में कायम हैं, हम तुझ में कायम रहेंगे।
जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये दिल धड़कता है, जब तक ये आंखें देखती हैं, जब तक ये कान सुनते हैं, जब तक इस बदन के अंदर खून गर्दिश करता है, खुदावंद हम तुझ में कायम रहेंगे। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। लफ्जी नहीं, लफ्जों के तौर पर नहीं, कुछ करके दिखाने की जरूरत है। और मुकाशफा की किताब अगर 3रा बाब पढ़े, उसकी पहली आयत में सरदेस की कलीसिया को जब खत लिखा गया तो उसको कहा गया, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा है और है, तू जिंदा कहलाता है मगर है क्या? मुर्दा। आज कई चर्च के अंदर भी मुर्दापन का शिकार, जिंदा खात नहीं बन रहे, मुर्दा खात बने हुए हैं। कोई उनके होंठों से आवाज नहीं निकलती मसीह की बिशारत की, मसीह के नारों की, मसीह के गीतों की, मसीह के कलाम की, मसीह की खुशखबरी की कोई आवाज नहीं है। कोई उनके लिए ऐसी बात नहीं है जो उनको जिंदा करे। लेकिन जिंदा सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब मसीह का नूर तुझ पर चमक जाएगा तो जिंदा खत बन जाएगा। तू जिंदगी, लोगों को जिंदगी देने वाला बन जाएगा। तू जिंदगी की खुशखबरी सुनाने वाला बन जाएगा। लोग तुझे तेरे कामों के सबब से कहेंगे कि ये वाकई ही खुदा के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, खून खरीदे लोग हैं, मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। आज हम कैसे खत हैं? दूसरों को तंग करने वाला खत, दूसरों पर तोहमत लगाने वाला खत, दूसरों से हसद करने वाला खत, दूसरों को परेशान करने वाला खत, दूसरों को दुख देने वाला खत। अपने आप को चेक करें, हम अपना एनालिसिस करें। जिंदा खत का मतलब है कि वो मसीह का खत है, जो लिखा है कि पत्थर की तख्तियों पर नहीं लिखा हुआ वो, बल्कि वो हमारे गोश्त और दिल की तख्तियों पर लिखा हुआ है। आज दिलों के अंदर ये खत लिखा जाना चाहिए। अपने अंदर से क्रोध, नफरतें, हसद, हमारे दिलों के अंदर तो यही है, पांबड़ बल दे रहे ना। आज दुनिया के बहुत पांबड़ हमारे दिलों के अंदर जल रहे हैं, तो कैसे खत वहां पर लिखा जाएगा? ये खुदा के रूह से लिखा गया, खुदा के कलाम से लिखा गया खत। और जहां पर खुदा का कलाम है, खुदा कलाम के मुताबिक लिखा है, फूल कमलाता है, घास मुरझाती है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहे। और यही कलाम आपके दिलों पर, मेरे दिल पर, हम सब के दिलों पर ऐसा नक्श हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई हीला, कोई मंसूबा इसको खत्म नहीं कर सके। फिर हम मसीह का जिंदा खत बन जाएंगे। काश हम ऐसे नजर आए कि मसीह का ये खत कैसा हो, जिनको देखा जाए, दुनिया जाने, उन्हें देखकर उन्हें उम्मीद हो, उन्हें खुशी हो, उन्हें इत्मीनान हो, उन्हें निजात मिल जाए। वो खुशखबरी, बशारत, प्रस्त, सताइश, मोहब्बत के गीतों से, सुलह और फरमाबरदारी के गीतों से, उसके नगमात से, उसके कलाम से भरे हुए खत बन जाए। और आज हम बिल्कुल अपने आप पर गौर करें कि क्या हम लोगों के लिए कैसा खत है, गैर अक़वाम के लिए कैसा खत है। लोग हमें किस निगाह से देखते हैं, लोग किस तरह हमें याद करते हैं, किस तरह हमारी पहचान करवाते हैं। हमारे काम जो भी हैं, हमारी जॉब्स जो भी हैं, हम कितने कैसा काम करते हैं, ये मकसद नहीं है।
मकसद ये है, क्या हम मसीह का जिंदा खत हैं? क्या हम खुदा के रूह की हिदायत से, खुदा के कलाम के मुताबिक लिखे गए? गलतियों खत के अंदर लिखा है, अगर तुम में खुदा का रूह है तो फिर रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। रूह से लिखा गया खत रूह कुद्स की कुदरत से वो चले फिरे उसकी हिदायत से। और आज जब हम ये खत बन जाएंगे तो हम जिंदा गवाह भी बन जाएंगे, फिर गवाही देने वाले बन जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, उनको खुदावंद यीशु ने यही कहा था कि तुम फिर यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। तो गवाह कैसे होने चाहिए? सच्चे। उनके अंदर कोई रिश्वत नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई ठगी नहीं। सच्चे गवाह उन्हें बनना है। तो ये रिश्वत वाला गवाही के ऐसे भी गवाह तो दाल चाल मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाते हैं ना, ले भी भाई गवाही दे दे तू, तेन इतना पैसा ला देने। हमें कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है। हमें सच्चे गवाह बनना है, मसीह के खून से खरीदे हुए गवाह बनना है, मसीह के लिए जान देने वाले गवाह बनना है। और ऐसा खत हमें बन जाना चाहिए। और आज हमारी जो जिंदगी या गवाही है वो कैसी कुछ है, चाहे वो अपने घर से ही है। सबसे पहली खत जो है हम अपने घरों के अंदर ही पढ़े जाते हैं। ये खत अभी जो आज का टॉपिक है ये है लंबा, अभी मजीद इतना वक्त हमें और चाहिए। जब हम एक एक बात पर गौर करें कि अपने घर के अंदर है तो घरों सब तो पहले घरों गवाही मिलती है ना। कई गवाही इंज होंगी है, ए भाई दूजे नाल ही चंगा है, घर तो असीं इहदे कोलों नक ना कीता हुंदा। ऐसा ही होता है। तो कई बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, वो बाहर सारे लोगों के काम करते फिरनगे, और घर वाला कोई उन्होंने काम कह देगा, उन्होंने को टाइम ही उन्होंने फौरन उन्होंने मुंह के उत्ते जवाब दे देना, ए मेरे को नहीं होता। यही हाल बेटों का, बेटियों का भी है। लेकिन आप जिंदा खत हो, आपको अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। आप जिंदा खत हो अपने वालदेन की, अपनी अगर घर के अंदर मियाँ बीवी हैं उनके अंदर ये सारा कुछ होना चाहिए कि वो एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, लोग आपको पढ़ रहे हैं। हम कैसा खत है? आज हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हम तस्बात का शिकार हैं, तस्ब किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जिंदा खत बनकर रहना है। इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जहां तक हमने जाना है, जहां तक हमारी रसाई है, हमने जिंदा खत बनना है। लिखा है हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा करते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हमें यह भरोसा तुम पर ऐसा ही होना चाहिए कि तुम मसीह का जिंदा खत बन जाओ। खाली चर्च आने वाले ना बनिए, खाली सिर्फ संडे क्रिश्चियन ना बनिए, रस्मी तौर पर, मजहबी तौर पर, रवायती तौर पर, गुड फ्राइडे के तौर पर और सनराइज सर्विस, ये ऐसे क्रिश्चियन नहीं, बल्कि मसीह के जिंदा खत बन जाइए। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा करते हैं। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं है, हम लफ्जी खादम नहीं है। हम रेवरेंड लिख लें, हम डॉक्टर लिख लें, हम बिशप लिख लें, हम फलां लिख लें, कईयां नूं तां ਇਹ भी बड़ी बीमारी जे उन्होंने क्या ना डॉक्टर या बिशप ना क्या जाए तो वो स्टेज पे नहीं आते। ग्राउंड में एक इबादत हो रही थी, उस भाई का नाम लिया गया, उन्होंने कहा जी डाल बिशप भी कहो तो फिर मैं आऊंगा। हम लफ्जों के खादम नहीं है, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। खुदावंद यीशु ने कहा जिस्म तो कमजोर है मगर रूह मुस्तिद है। मुस्तिद हो जाइए, जिंदा खत हो जाइए और मसीह का जिंदा खत हो जाइए, जो पत्थर की तख्तियों पर नहीं
بلکہ گوشت اور دل کی تختیوں پر لکھا گیا خط اور مسیح کے خون سے، مسیح کے کلام سے، خدا کے روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا خط ہو۔ خداوند آج صبح اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز گاڈ۔ خداوند کا شکر ہو اس پریکٹیکل میسج کے لیے، اور ہم یقین